Only one country to say to another what they should do. An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है. I'm sorry to break your heart, but it was never 56 inches. It was 56 millimeter, and that is fine. There's nothing wrong with that. Rhetorics are futile, but at least government of India should officially refute such claims as soon as possible. Think about this. What's the message for the world today? Who announced a ceasefire first? Was it India? No. Was it Pakistan? No. Donald Trump. That is not sovereignty. Of course, peace should prevail, no doubt about that. But it is First, what was the agenda of showing video of Indira Gandhi to demonstrate sovereignty? You pretend that you are an unbiased person. Why did you do that? You did that because you are a fucking bastard. She was about to share nuclear secret with Pakistan. No, this is... It was published in 2013, April 10. So do not tell me that somehow Modi influenced Times of India to publish it. No, it is recorded in WikiLeaks. So the fraud, the only fraud is you, nobody else. sovereign country. It is India that should decide when, why, and by how much. What is the point of Shimla Agreement if you're shamelessly allowing third parties to mediate on our behalf? Of course, some idiots will come and claim times are different now. But I will not say that you are an idiot because you are extremely cunning person. Comment section देखता हूँ क्या लिखा है लोग. No, Jayashankar was in the last section. First of all, जयशंकर के पास कोई पावर नहीं है. पावर सारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है. तो जयशंकर को गाली देके किसी को कुछ मिलेगा नहीं. बीइंग अ इंडियन मुस्लिम, चलो मुस्लिम रियल पैट्रियट टुवर्ड आवर मदरलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम मुस्लिम सचमुच हो तो तुमको पता होगा कि इस्लाम मदरहुड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है. Either you are a leftist pretending as a Islamist, or you are genuinely a person. The day a nester stop questioning it, start collapsing. I don't want. First of all, China, you cannot question authority in China. Is China collapsing? The same is true about Russia. Is Russia collapsing? तो पहला स्टेटमेंट ही तुम्हारा गलत है. हाँ, it gives good sound bite and maybe nice marks in UPSC examination. यूपीएससी पेपर में डार्लिंग जो तुम लिखते हो ना, वहां में लर्न चूसना होता है. यानी ऐसा आंसर दो जो किसी को बुरा ना लगे. सच सच लिखना या बोलना नहीं होता, क्योंकि सच ये लिखोगे या बोलोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे तुमको. तो तुम्हारी ट्रेनिंग इस टाइप की झूठ बोलने की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि तुम सच बोल ही नहीं पा रहे हो. तुम्हारा एक एक, मतलब सिर्फ एक भी स्टेटमेंट तुम अगर स्क्रूटनी किया जाए तो एक स्टेटमेंट तुम्हारा सही नहीं. I don't want the subscriber of the channel to ever mouthpiece of the BJP, Congress, AAP and any other party. First of all, you were mouthpiece of Indira Gandhi this channel. You were defending her indirectly. आप is not powerful, so आपको कोई डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है. एटलीस्ट हार्वर्ड वालों को. अब ये कौन सा मुकेश चंद्राकर वाज फाइल्ड. देखो, ऐसा इवेंट ना तुमको चाइना,
चाइना, यूएसए, रसिया, जो जिस करोड़ों जहां में जनसंख्या है, तुमको इस टाइप का इवेंट मिलेगा, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। फिर यहाँ में बोरिंग सा लेक्चर लिखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट हॉरर दैट शुड बी स्पार्क आउटलेट रिफॉर्म इन यूपी, मतलब पहले बात तुमको, तुम इंडिया में रहे ही नहीं हो, तुमको पता है अगर ये नॉर्थ ईस्ट में कोई बीमार होता है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है पता है? कोई हॉस्पिटल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, अब बना है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसको डायरेक्ट डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, असम जाना पड़ता है। जब तुम जिंदगी भर, जब तुम दिल्ली में रहते हो या इंडिया के बहुत बड़े बड़े शहर में लगते हो, तो तुमको और मीडिया में तुमको ये बताया जाता है कि यूपी का हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, तो तुमको पता ही नहीं है कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कहाँ खराब है। मैं अरुणाचल में रहा हूँ, पता है, जब बीमार होते हैं तो लोग को जाना पड़ता था गुवाहाटी, जो लोग को जाना पड़ता था डिब्रूगढ़। अब बीच में होती थी ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें कोई पुल नहीं होता था, और जब बहुत ज्यादा बाढ़ होती थी तो आप क्रॉस भी नहीं कर सकते थे, बिना इलाज के लोग मर जाते थे। तुमने दुनिया देखी नहीं है। दुनिया तो देखी होगी, इंडिया नहीं देखी है। When Lal Bahadur Shastri was a minister in a government, his family needed a car to travel. Given his limited personal, he decided to take a bank loan to buy a This is yes. ये नौटंकी क्या पता है? ये नौटंकी है, ये पुराना नौटंकी है जो अभी भी चल रहा है। तुम गरीब रहो, दुखी रहो, कार मत खरीदो। चलो कार नहीं खरीदेगा तो इकोनॉमी इंडिया का कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री कोई महान आदमी तो थे नहीं। इंडिया लगभग 1965 का वॉर बहुत मुश्किल से ही जीता था। 1962 का वॉर इंडिया हार गया था बुरी तरह। इन लोगों को जबरदस्ती बनाया गया है महान, इनमें कोई महानता था ही नहीं। महान तो मोदी जी भी नहीं है, लेकिन हाँ वो बेटर जरूर है, प्रीवियस जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बेटर जरूर है। वो- उन्होंने कार का नौटंकी इसलिए किया था ना, क्योंकि इंडिया में लोग भूखमरी थी, इंडिया में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो जब इंडिया में खाना नहीं मिल रहा था, तो वो कार से घूम रहे होते, तो उसका मिसयूज करती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इसलिए ये नौटंकी हुआ था, और ये कहानी मीडिया में फैलाई गई थी। शास्त्री जी के समय वाला भारत तो कभी इंडिया को चाहिए ही नहीं। जो गाय जो गाय और घोड़ों को खिलाया जाता था ना, वो ऐसा चावल यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में भेजता था, और भूखे नंगे लोग खाते थे, और बहुतों को तो मिलता भी नहीं था। गवर्नमेंट बोलता था मेरे हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते खाना, इसलिए वो उपवास रखिए। तो उसको ग्लोरीफाई मत करो, जो लाल बहादुर शास्त्री के समय बहुत महान था भारत। भगवान ना करे ऐसा भारत फिर कभी आए। यहाँ में इंदिरा गांधी का जो इसका वीडियो से लोग को पता है। अबे ये तूने नहीं बताया कि न्यूक्लियर सीक्रेट दे रही थी वो तो मैंने अभी दिखाया तुमको। ये देख, इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर सेक्रेट दिया था, का पेशकश किया था पाकिस्तान को। इस पर तुमने नहीं बताया। तू जब नौटंकी जो करता है ना, जो तू ये है वो है, तू कुछ भी नहीं है। बहुत लोग मेरे को इम्प्रेस करते हैं कि हार्वर्ड कैम्ब्रिज, अबे तू इंडिया में कुछ नहीं कर पाया इसलिए वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज गया।
और वहां में तू पढ़ के कोई भारत का या किसी भी, या इवन उनका भी कोई भला नहीं कर सकता। क्या तुमने वहां में कोई इंडस्ट्री खोली है, कोई इनोवेशन किया है, कोई वैक्सीन बनाया है? नहीं। वो तुमको इंडिया को तोड़ने में ही तुमको यूज करेंगे, और कर रहे हैं। जो अभी ये जो आकाश डिफेंस सिस्टम जिसने इंडिया को बचाया, उसमें से कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है। और पहली बात, विदेशी यूनिवर्सिटी का नौटंकी मेरे को मत दिखाना, क्योंकि अगर तुम सीरियसली विदेशी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना चाहोगे ना, तो वहाँ ईटार एक्ट है, तुमको सीरियस रिसर्च तुम कर ही नहीं पाओगे, इलीगल है। अगर तुम यूएस बॉर्न सिटीजन नहीं हो तो काम भी नहीं कर सकते। मुझे, अगर ये ध्रुव राठी से भी 4 कदम कोई आगे है ना झूठ बोलने में, तो ये है। एटलीस्ट ध्रुव राठी का एक है, जो कुछ कुछ वो जो पॉलिटिकल टॉपिक पर बनाता है वीडियो, वो इंटरेस्टिंग तो होता है। इसका तो लेक्चर सुन के लगता है कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सॉवरेनिटी, ये अभी तक इसी में घुसा पड़ा है। अरे वो पेपर में लिख दिया, बात है। दुनिया ये सबसे नहीं चलती है। दुनिया चलती है ताकत से, दुनिया चलती है इनोवेशन से, नॉलेज से। ये सब बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, ये सब डायलॉग मारना। और कोई महान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया का, कोई महान नहीं। वो 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट का कॉपी पेस्ट है। कोई अलग से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, या हम्मुराबी कोड, या इवन मनुस्मृति जैसा भी नहीं है जो लोगों ने ढंग से बनाया हो। इन्होंने कॉपी किया है। और ज्यादातर उनका उनमें नेहरू जी का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड वही थे। तो लोग अंबेडकर जी को बोलते हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, टेक्निकली नेहरू जी ने बनाया है।